Right. Uh, One more thing I wanted to ask you: why you think people are unhappy in the world? Like many people, about 95% people are not so very happy about their life. Why you think they are unhappy? Okay, why you think or why I think that people are unhappy? Let me tell you. Why I think? Okay, anybody like that? I'm not thinking that people are happy. People are not happy. I'm saying actually people are not happy. My thinking doesn't matter. People लोग वास्तविकता में खुश नहीं है मंजुला जी. बहुत सारे कारण हैं. ठीक है. लोगों की एक्सपेक्टेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ थिंग्स वर्क्स. ठीक है. सबसे पहला कारण क्या है दुखी होने का? माई एक्सपेक्टेशन from myself and people around me and the reality of my life. Got it? For example, I go to a person. Got it? Okay, I go to a person and if I go to my friend and I ask him that give me some money, I'll return you money after a week or 10 days. Got it? And he says that I went to take some money from my friend. It was my hope or my expectation that my friend he's been a very nice person with me for 5 years, and at least as a friend he should be able to give me some money. So I go to him, Ramesh, give me 20,000 rupees, I'll return you money in 10 or 15 days. And he is well off financially, is very sound, and that's the hope. That's the reason I have this hope from him, that he is financially sound, he earns a lot of money, he is my friend, so he should be able to give me at least 20,000 rupees as a loan or as a helping hand. But he denies. Sorry Suresh, I cannot lend you money, I cannot give you this money because I'm tight nowadays and I have some investments, so I cannot give you money, I'm sorry, next time I'll help you. So that's the one reason that I am not happy with myself plus with my friend also. In this whole process, what happened? It was my misunderstanding of my friend. See, having a hope from my friend is okay, fine, I can have hope. But having 100% hope that he would help me is a starting of attachment and starting of misunderstanding. So लोग दुखी होते हैं, ये तो बहुत छोटी सी बात है मंजुला जी. पूरी दुनिया में डिप्रेशन, पूरी दुनिया में एंजाइटी, पूरी दुनिया में जो नफरत है, जितने वर्ल्ड वॉर हुए हैं, जितनी लड़ाइयां होती हैं, पूरी दुनिया में जितने जो डाइवोर्सेस होते हैं, जितने लव ब्रेकअप्स होते हैं, जितनी जितनी लोग सुसाइड करते हैं, ठीक है, जितने लोग नींद की गोलियां खा के सोने की कोशिश करते हैं, जितने लोग शाम को ड्रिंक करके नशा करके सोने की कोशिश करते हैं, या जितने भी लोग हैं जो अपने आप को इस दुखी वाली दुनिया से भुला देना चाहते हैं और उस भुलाने के कारण किसी भी चीज का सहारा लेते हैं, चाहे वो नशा हो, ड्रग्स हो, चाहे वो स्लीपिंग पिल्स हो, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, उस सबका सिर्फ एक मूल कारण है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ रियलिटी वर्क्स. People simply are not happy because they have wrong understanding of reality and human nature. Okay. Wrong understanding will give you attachment. Wrong understanding will give you false hopes. The wrong understanding of reality or people will give you a very a misguiding information. Got it? And wrong understanding of things will give you a very I would say the false hopes or false information or false expectation from reality. अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं. It's not that people are wrong, it's not that the reality is wrong, it's not that the society that we have around ourselves is wrong. Actually we are wrong because we expect all these things.
ठीक है, अगर रोड खराब है, आपके घर से लेके मार्केट का अगर रोड खराब है, तो आप रोड चेंज ना करवा के आप कोई मजबूत सी चप्पल पहन ले, वो ज्यादा बढ़िया है। गेटिंग इट? सो यू कैन नॉट चेंज द होल रोड, बट एटलीस्ट यू कैन चेंज योर स्लीपर। तो होता क्या है कि लोग जो दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, जो रियलिटी को बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो जबरदस्ती लोगों से उम्मीद लगाते हैं और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती, जो जबरदस्ती एक अटैचमेंट करते हैं चीजों के साथ, जो लोगों की जो गलत अटैचमेंट होती है, तो एक्चुअली वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत नकली और बनावटी होती है। तो कोई आपसे ये नहीं कहता कि आप मुझसे गलत उम्मीद लगाओ, ठीक है। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति, जो एक विवेकवान व्यक्ति होता है, वो सिर्फ अपने आप से उम्मीदें लगाता है। और जो व्यक्ति अपने आप से उम्मीदें लगाता है, जिस व्यक्ति को पता होता है कि दुनिया कैसे काम करती है, और जिस व्यक्ति को पता होता है कि लोग धोखा भी दे सकते हैं, जिस व्यक्ति को पता होता है कि ये भौतिक सुख सुविधाएं बहुत ही टेम्परेरी होती हैं, तो वो व्यक्ति कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता, वो व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो, मंजुला जी, भाई मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, मैं लोगों से निराश नहीं हूं, लेकिन मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं है कि ये मेरा काम करेगा या मेरी ये इस चीज को पूरा करेगा। तो मैंने उनके नेचर को, उनकी दी हुई मतलब प्रताड़नाएं, उनके दुख, उनकी गालियां, उनके कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, उनके सुख दुख मैंने स्वीकार कर लिए हैं। तो इसका मतलब स्वीकार करने के बाद मेरे ऊपर या उस व्यक्ति के ऊपर उन चीजों का असर नहीं हो सकता। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर भौतिक सुख सुविधाओं का और इंसान की बनाई हुई सुख सुविधाओं का या बुद्धि की बनाई हुई चीजों का असर नहीं होता, उस व्यक्ति को दुखी नहीं किया जा सकता। आप एक ऐसे व्यक्ति को इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेच सकते जिसको मृत्यु से डर ही नहीं लगता। आप किसी साधु को इंश्योरेंस पॉलिसी भेज सकते हो ना? हो ही नहीं सकता। Yes. The sadhu will say like, I'm already insured. I'm insured by Lord Shiva. So who are you to give me this insurance? Is this psychological security? I'm already secured, man. So अगर आप मुझे कहते हो कि आपके मरने के बाद आपके परिवार को 20 लाख मिलेंगे, 50 लाख मिलेंगे, 1 करोड़ मिलेगा, so he will say I don't care. जब मैं यहाँ हूं ही नहीं, तो मुझे मेरे जाने के बाद तो मुझे किसी की परवाह भी नहीं है। Getting it? So you cannot sell insurance policy to a person who has already accepted his death. And the person who has accepted his death, he is already, at a liberated state. समझ लो, that person has realized Lord Shiva. So सबसे बड़ा कारण लोग दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, नशा करते हैं, ठीक है, उसका कारण ये है कि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। बहुत ही सिंपल सी बात है। और बड़े बड़े देशों में लोग एक्चुअली सबसे ज्यादा बिकने वाली जो मेडिसिन है, मैंने शायद पहले भी बताया था, ये एंटी एंजाइटी और स्लीपिंग पिल्स और लिकर इंडस्ट्री, उसके बाद आपका पॉर्न इंडस्ट्रीज एंड डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल फील्ड जो है, जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जो फील्ड है, ये जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, लेट मी टेल यू, इंडियन, एशियन कंट्रीज, चाइना, इंडिया, यूरोपियन कंट्रीज, लाइक यूरोपियन जितनी कंट्रीज हैं, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज, ये सारी की सारी कंट्रीज इन परेशानियों से जूझ रही है, क्योंकि हमने भौतिक लेवल पे तो बहुत तरक्की कर ली, लेकिन आध्यात्मिक लेवल पे हमने बहुत कम तरक्की कर ली। इसी का कारण है कि लोग ऐसे परेशान रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक वो अपने आप को ना समझ जाए।